तक हम पोटेंशियल डिफरेंस देख चुके हैं। VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट फ्रॉम B to A. B at A is equal to work external done from infinity to A divided by Q. Potential at a point is given by KQ by R. और इस वक्त Q में लेकिन आप साइन डालेंगे, इतना जरूर याद रखिएगा, Q में साइन डालेंगे। एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है, हर एक पोटेंशियल को निकाल के अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, आइए, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग चलते हैं आज पोटेंशियल ड्यू टू हमारे कोर्स में नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल देखना है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। ठीक है ना, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। Okay, electric potential due to a dipole. Right. So very first thing is, let us quickly see what is a dipole and what are the things that are present in a dipole. A dipole is a system where there are two equal and opposite charges. Let's say this is minus Q and this is plus Q, and they are separated by a distance which we assume as 2a, because all distances are measured from the center of the dipole. That's why this length is taken as 2a. And a dipole always has a dipole moment, and the dipole moment is always from negative to positive, right? The dipole moment is in this way. And this dipole moment is known as P. And the value of dipole moment vector P is given by 2a into modulus of the charge Q. Right? 2a into modulus of the charge Q, where P is known as the dipole moment. It's a vector. Dipole moment is a vector, and the direction of dipole moment is given from line on the line joining the two charges from negative to positive. ठीक है ना, ये हो गया। चलिए, अब इस चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम दो केसेस में देखेंगे। फर्स्ट इज at a point on the axis of the dipole, on the axis of the dipole. So let us make one dipole once again. So this is our dipole, and let us join these lines. Let's say this is line joining the two dipole. This is the axis. Okay, wait for it. Dipole. And let's take this as, इसको नेगेटिव क्यू ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं, तो सेंटर से नापा जाएगा, और सेंटर को हम क्या लेंगे, सेंटर को हम O ले लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर से इस साइड की दूरी कितनी है, A, इस साइड की दूरी है A। आप कहाँ पे मेजर करना चाहेंगे, हम मेजर करना चाहेंगे किसी भी एक पॉइंट P पे, तो कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द और P और वट एवर, P नहीं, P कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि P तो वही डाइपोल मोमेंट के साथ, इसे A ले लेते हैं एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी A। ठीक है ना, और A को हमें एक डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो A की डिस्टेंस कितनी दे, A की डिस्टेंस को हम x दे देते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर से A की दूरी कितनी है, सेंटर से A की दूरी है x। ठीक है, नाउ हाउ फार इज माइनस क्यू फ्रॉम द सेंटर बेटा, हाउ फार इज माइनस क्यू फ्रॉम द सेंटर, जरा देखो तो माइनस क्यू कितनी दूर पे है सेंटर से, x प्लस ए, x प्लस ए, और प्लस क्यू कितनी दूर है सेंटर से, x माइनस ए, x माइनस ए। तो ये तो दो चीजें हमें चाहिए। ठीक है, प्लस क्यू कितनी दूरी पे है। ठीक है, सो वी राइट ए जो है इज एट अ डिस्टेंस x from center of dipole, right? A is at a distance x from the center of the dipole, and therefore plus q
is at a distance, how much? Plus Q will be at a distance of x minus A from A, and minus Q is at a distance x plus A from A. ठीक है, इतना हमें पता चल गया. Now, what else we will use? We will use potential due to a point charge. Last class में हमने निकाला था. Potential due to a point charge Q, capital Q, is given by V, which is equal to V due to Q, which is given by K Q by R, right? Like Yes. potential at a point, right? Where R is equal to distance of point from Q. एकदम आराम से चलेंगे. But R is at the distance of point Q, right? So based on above, okay, based on above, now you can calculate V at A due to minus Q. Let's first calculate what is V at A due to minus Q. We will write K into negative Q divided by x plus A whole square. Right? So square name. Oh, sorry, square name, right? This is equation 1, and V at A due to plus Q will be equal to K plus Q divided by x minus A. This is 2. So यहाँ पे लिख के रख लो, बाद में कभी रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेगा कि always include sign, है ना? Always include sign for evaluating potential. Okay, for evaluating potential. अब हमारा कैसा हो जाएगा? अब हम V at A net will be equal to V at A due to negative Q plus V at A due to positive Q. So how much does this come as? K को कॉमन ले लेते हैं तो हमें आएगा Q by x minus A plus negative Q by x plus A. Right? सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? K, you get an LCM of x plus A into x minus A. Your LCM. Q भी कॉमन निकाल सकते हैं ना? हाँ, x square minus A square, right? Q भी कॉमन, no doubt about that. K x square minus A square, Q को अभी हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे. तो x plus A minus x plus A. X plus A minus of x minus A, right? So this ये अभी आगे हो जाएगा. So एक और स्टेप यहाँ लिख लेते हैं. It becomes KQ. अंदर में क्या है? X plus A minus x plus A divided by x square minus A square. Okay, very easy. Q2A by x square minus A square. x और x को काट देंगे तो यहाँ पे ये आगे चल के कितना हो गया? KQ2A divided by x square minus A square. और KQ2A में 2AQ को हम क्या लिखेंगे? P लिख देंगे. P into K divided by x square minus A square. ठीक है ना? Or you can write V net or due to a dipole, ये आपका expression आ गया, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. और K की जगह पे हम क्या, P की जगह पे हम P रखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? x square minus A square. Sir, do these problems have that key if x is much greater than A? Yeah, why not? Why not? Absolutely. You have to, वो concept तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है? Because dipole के अपना distance बहुत बहुत छोटा है. ठीक है? So now you can write here. वो हम यहाँ पे लिखेंगे note. वो हम note डालेंगे यहाँ पे note for a short dipole.
for a short dipole, your X will be, if X is much greater than A, if X is much greater than A, then V net due to the dipole can be thought of as 1 upon 4 pi epsilon naught P by X square. क्लियर? ये आ गया हमारा दूसरा फाइंडिंग. हो गया ये तो आसान ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. ठीक है बेटा? This was your first one at a point on the axis of the dipole. आराम से लिखो एकदम, वो बहुत टाइम है हमारे पास. Do not, आपको कोई भी स्टेप गड़बड़ कुछ भी लगता है, क्लियर करते करते. ठीक है, इस बार हम करेंगे एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ at a point on the equatorial plane of an electric dipole, right? Equatorial plane. So equatorial plane आपको पता है ना, ऐसा प्लेन जो कि हमेशा, तो पहले इसको कैसे करें, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. Let me pick this in the next page. Why unnecessarily clumsy it here? Okay. Equatorial plane. So let us first try and draw the diagram. So this is our dipole axis. This is one charge. This is one charge. Equatorial plane means it's on the perpendicular bisector of both the charges, right? And how do you think about your equatorial plane? Your equatorial plane is something like this. Your equatorial plane is something like this. And this is the equatorial plane. So our point is somewhere here. यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं अभी. जोड़ने से यहाँ तक ये एक जोड़ा हमने, ये एक जोड़ा, और कुछ नेमिंग कर लेते हैं. आइए, नेगेटिव क्यू है यहाँ पे, पॉजिटिव क्यू है यहाँ पे. ये हमारा पॉइंट ए है, और पॉइंट ए यहाँ पे ये सेंटर है ओ, और ये जो है ये हमारा है इक्वेटोरियल प्लेन है हमारा. इक्वेटोरियल प्लेन, और ये 90 डिग्री पे जाएगा हमेशा, ठीक है. और यहाँ पे ओ, तो इसका मेजरमेंट है ए, इसका मेजरमेंट है, और यहाँ से इसकी दूरी है एक्स, ताकि यहाँ की दूरी कितनी हो गई, यहाँ की दूरी हो गई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ की दूरी कितनी हो गई, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये है हमारी प्रोग्राम, है ना. So we can write A is a point on the perpendicular bisector of the axis of the dipole. And you can write a point that this perpendicular bisector lies on the equatorial plane. Equatorial plane. ऊपर लाइन में एक और लाइन लिखेंगे, at a distance x from O.
at a distance x from O. Electric potential due to a point charge Q at a distance R is given by VQ is equal to KQ by R. Based on above, V at A due to negative Q will be equal to negative KQ by root under A square plus R square. Oh, sorry, X square. A square plus X square. And similarly, V at B due to V at A due to positive Q will be equal to plus KQ by root under A square plus R square. X square, sir. X square. X square. ये मजेदार है. So V net. Wait, so this becomes 0. Yes, V net at A is equal to V at A due to negative Q plus V at A due to positive Q. ये बड़ा अच्छा आसान है. ये डेरिवेशन आ गया. दोनों ही आसान है इसमें. So this is equal to KQ by root under A square plus X square plus minus KQ by root under A square plus X square, which is equal to 0. Dipole, where EQ plane, ठीक है ना, is equal to 0. यहाँ पे भी जब आपने V net लिखा ना डायपोल, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक्सिस में है. ये पूरा काम हो रहा है एक्सिस. खाली डायपोल लिखना ठीक नहीं है, एक्सिस. इक्वेटोरियल प्लेन में आपको आ गया है ये 0. ठीक है. इसका एक अभी, although in electric field we don't do that generic case, in potential we will do the generic case, क्योंकि कभी तो लिखा है आपके सिलेबस में electric potential due to a dipole. So I'll cover that generic case also, क्योंकि एक CBSE में एक जमाने में आता था. ठीक है. Generic cases, any point at a point due to dipole. That point now need not be on your axis or need not be on your equatorial plane. कहीं भी वो point lie करेगा. ठीक है. आइए वो थर्ड केस को इसको देख लीजिए. और कुछ नहीं है तो चलिए चलते हैं तीसरे वाले पे. तीसरा हमारा है जेनेरिक केस. This is electric potential at a general location due to a short electric dipole. ड्राइंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस केस में. ये हम जेनेरिक केस में देख रहे हैं. सो द ड्राइंग चेंजेस अ बिट. 1 minute. Okay, so let's make our diagram now. Diagram is, so the axis, so dipole बनाइए. This is one, this is the other, right? Or इनको, let's take any point. Now your any point is out here. Let's say this is our point. This is our point A. ठीक है. A को हमें सेंटर से एक दूरी देनी होगी. तो सेंटर से हमने A को दे दिया है, ये सेंटर से दूरी है A की. जैसे वो, this is our minus Q, this is our plus Q. ठीक है. And then हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं.
This is how I have joined this, right? And I have also joined this one. Two things we will do. Yes, we will extend this line. This we will extend this one, right? And we will drop two perpendiculars. One perpendicular we will drop from here on this line, and one perpendicular will drop from here on this line. Okay? Such that this is 90, this is 90. थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं. इस परपेंडिकुलर को m नाम देते हैं, इसको n नाम देते हैं, ठीक है ना. और कुछ लिख लेते हैं. A is a general location at a distance x from O. A is a general location at a distance x from O. ठीक है ना. तो अगर हम इसको मेजरमेंट करने की कोशिश करें तो A की दूरी O से, यानी कि somewhat from A to O, ये वाली जो दूरी है, this is x. This is x. A is So at a, what distance is this? This is the distance of A from O. O is the center of the Okay. dipole. So this is beta how much? This is A and this is A. At a general distance O from the dipole. ठीक है ना? And this angle, यहाँ एक और गौर करेंगे, इस एंगल को हमने थीटा लिया है, सो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है ना. ये दो एंगल हमारे थीटा थीटा बने हैं, राइट. Yes, sir. फाइन. ओके, आइए चलिए तो करने की कोशिश करते हैं. फिर से वही लिखेंगे. इलेक्ट्रिक potential due to a charge Q, electric potential at a point at a distance R electric potential at a point at a distance R from a point charge Sir, X. Q. नहीं, ये generic है. Q is given by, these are generic. VQ is equal Okay, to okay. KQ by R. So based on above, I'm not jumping in a step. Based on above, V at A due to negative Q will be equal to minus K, sorry, will be equal to K into negative Q divided by, and let's put this dipole's location. Let's say this dipole is Mn and let's say this dipole is CD. Okay, it should be AC. It should be AC, right? And V at A due to positive Q should be equal to KQ divided by AD. ठीक है बेटा? Yes, sir. और थोड़ी सी ज्योमेट्री कर लेते हैं. ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि our distance of AC can be written as what beta? AC can be written as AO plus ON. Do you agree? Yes, sir. AC can be written as AO plus ON. वो जो है यहाँ बहुत बड़ा हो गया, यहाँ बैठा हुआ, छोटा करते हैं इसको. ON, ठीक है ना? AO.
What is the value of AO? AO's value is X. And what is the value of ON? ON can be written as, ON को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? Cos theta के टर्म्स में लिखने से cos of theta is equal to A by ON by A. So can we write it as A cos theta? Yes, sir. ठीक है ना? A cos theta लिख सकते हैं. थोड़ा सा यहाँ ये भी कर लेते हैं. प्रॉब्लम तो है नहीं. ऐसा था. तो ऐसा है. It's like this. And that's like this. और यहाँ पे ऐसे आके ज्वाइन किया है. So ऐसे आके ज्वाइन किया है. ठीक है. हमारी नेमिंग क्या क्या है? ये है C, ये है O और ये है N. ठीक है ना? ये है थीटा. तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो गया? Cos थीटा is adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is ON divided by A. और ON is equal to A cos theta. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. इसी तरह हम अगर दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल में AD को कैसे लिखेंगे? जरा सोचो तो AD. AO minus OM. हाँ, AD को कैसे लिखेंगे? AD can be written as AD's distance is equal to AO minus OM. ठीक है ना? राइट? AO minus OM. AD की डिस्टेंस हो जाएगी AO minus OM. राइट? तो इसको कैसे लिखेंगे? AO के लिए लिखेंगे हम X और यहाँ में लिखेंगे माइनस A cos थीटा. क्लियर है अभी? Yes, sir. ठीक है. तो आइए दोनों को प्लग करते हैं और फिर से निकालते हैं. तो हमारी V at A net will be equal to V at A due to plus Q plus V at A due to minus Q. दोनों पोटेंशियल्स को जोड़ते हैं. सबसे पहले आएगा KQ डिवाइडेड बाय AD का AC का आ गया X plus A cos theta plus K into negative Q divided by X minus A cos theta. क्लियर है? Yes, sir. अब इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा. अब क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं? K बाहर निकाल सकते हैं बेटा, Q बाहर निकाल सकते हैं. तो अंदर क्या रह गया? 1 by X plus A cos theta minus 1 by X minus A cos theta. उल्टा लिखा ना मैंने. इसमें A माइनस नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया है. 1 मिनट. हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया है. Here it should be minus and here it should be plus. साइन को बदला है. This is minus, this is plus, this is minus and this is plus. ठीक है? Right? Let's solve this one now. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा मुझे? एक KQ हो गया, नीचे हो गया X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos theta. ऊपर क्या आ जाएगा? X प्लस A cos थीटा माइनस X प्लस A cos थीटा. Yes, sir. ऊपर हो जाएगा KQ. अब ऊपर में देखते हैं क्या क्या कटेगा. X और X कटेगा. 2A cos theta. यहाँ पे आया 2A cos थीटा और नीचे क्या है? नीचे हमारा रह जाएगा X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा. ठीक है ना? थोड़ा और इसको बेटर करते हैं. अभी बेटर करने से क्या हो जाएगा? 2AQ को हम P लिख सकते हैं. Yes. So we can write KP cos theta. KP cos theta divided by X square minus A square cos theta. ठीक है ना? cos square theta. हाँ, cos square theta. Sorry, cos square theta. ये हो गया आपका V at A, the net. Now you bring your conditions now. Conditions are for a short dipole. For a short dipole, right? For a short dipole, we will say
x is much greater than a. X is much greater than a. Therefore, a square cos square theta can be neglected. So if you neglect that, then your V net at A becomes equal to Kp cos theta divided by x square. And now you can write as V net is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta divided by x square. ठीक है? जी सर. ये आ गई हमारी फाइंडिंग. अब यहाँ दो और फाइंडिंग हम निकाल सकते हैं इसके साथ साथ. अब इसमें दो और फाइंडिंग भी निकाल सकते हैं. और वो दो फाइंडिंग क्या होगी? वो कुछ ऐसी होगी. केस 1 को देखते हैं अभी. केस 1 में हमारा क्या था? केस 1 था ऑन एक्सिस आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाता है. देयरफॉर वी नेट ऑन एक्सिस, फिर से 1 का डेरिवेशन आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 और sin 0 0 cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1, यानी कि ये हो गई p by x square. देखो आपका वही डेरिवेशन आ गया फिर से. तो जेनेरिक को आप याद रखोगे तो दोनों ही कर सकते हो. ऑन EQ प्लेन में जब हम देखेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. देयरफॉर V net on EQ plane is equal to 0. अब तीनों आ गया आपका. ठीक है. तो ये डायपोल का तीनों क्लियर हो गया. There's nothing great difficult. These are very all these three derivations if you know, और आपको हेल्प कर देगा. एकदम स्ट्रेट मार्क्स है इसमें. ठीक है. अब एक और टॉपिक देखते हैं और उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ये जस्ट डेफिनेशन आ सकता है, आपको आया तो व्हाट इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस? 2 मार्क का क्वेश्चन वाला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. ठीक है ना. इसको लिखेंगे एन imaginary surface on which electric potential remains constant. समझ में आया ना? तभी इक्विपोटेंशियल होगा. रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे मान लो आपका डेस्क को आप बोलते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इस डेस्क पे an imaginary surface where where electric potential remains constant at all points on the surface. समझ में आया? जी सर. At all points on the surface. इसमें दो चीज याद रखिएगा. ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता है? ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन रहेगा, द डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. ओके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, उसका कोई भी इक्वेटोरियल प्लेन आप ले लो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है. वहां पे हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा आपको. जैसे आपने एक सर्कल बना दिया, सोचो ना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसके ऊपर एक डीवीडी लगा दो, उस डीवीडी के रेडियस में हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ना इस पॉइंट से. यस सर. दैट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ऑल पॉइंट्स, है ना. सो द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक रहता है डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू फील्ड. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हैं थोड़ा बना लेते हैं. एक दो डायग्राम इक्विपोटेंशियल सरफेस के. ऐसा रहेगा, जैसे मान लो ये एक है. ठीक है.
अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीज आर ऑल परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, they are all perpendicular to the direction of electric field. इसका मतलब है a surface perpendicular to electric field. अगर आपको कोई और एग्जांपल पूछा तो आप कह सकते हैं a sphere of any radius around a point charge at its center is a equipotential surface for a point charge. स्फीयर, हाँ स्फीयर सोचो, वो स्फीयर में कहीं भी आप सोच लो पॉइंट चार्ज के लिए वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, देखते हैं अब कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके बाद हमारे पास रह जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमें system of charges and due to a dipole देखना है, and then we move to the next part of the chapter which is capacitance. That's completely theory except one set of derivation. मतलब आप conductors, insulators एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद it will be having only we are quite ahead, nothing to worry. Another 2 or 3 classes maximum will be done with this part. आओ कुछ problems देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे आपको आता है, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, दिस इज अ सीबीएसई क्वेश्चन, हाँ, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस corresponding to a uniform electric field in the z डायरेक्शन। सोचो, z डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? आपने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्राइटेरिया क्या है बेटा? देखो ऊपर पढ़ो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्राइटेरिया क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? हाँ जी, ये लिखा है ना, ऊपर देखना। हाँ सर। ब्लू में लिखा हुआ है, देखो। हाँ, तो सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तुम्हें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दिया है? z डायरेक्शन में। तो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगा? देखो ये यही सब है
संजीवनी क्लैरिटी के क्वेश्चंस देखो, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। ये क्वेश्चन बहुत लोग देख के ही समझ जाएंगे कुछ हाईफाई दे दिया, कुछ हाईफाई नहीं है। अगर आपका थॉट करेक्ट है तो अभी आप बोलो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? हाँ सर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? Z डायरेक्शन में। Z डायरेक्शन पे है। So the surface should be perpendicular to the Z तो direction. सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू Z डायरेक्शन, ये तो मैं भी समझ गया। तो अगर हम सोचे तो सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, किस प्लेन पे होना चाहिए हमारा? XY plane. XY प्लेन पे, X भी परपेंडिकुलर। और सरफेस है ना बेटा, सरफेस का तो 2D होना ही पड़ेगा। सरफेस हमारा 2D होना ही पड़ेगा क्योंकि वो Z प्लेन पे है। तो आओ ना, इसको बुक एक तरह से बना, हम हमारा कॉमन सेंस से बनाते हैं। आजा आजा कॉमन सेंस बनाते हैं। ये देख, ये है, ये है और ये है, ठीक है ना? कर ले कॉमन बातें, आ जाओ। ये हमारा Z डायरेक्शन है, इसको Z मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं, इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो Z डायरेक्शन में है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए कि नहीं? ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। बताओ संजीवनी, ठीक है कि नहीं? Yes sir. हालांकि बुक में ऐसे ड्रॉ नहीं है पर हम ऐसे करेंगे, हमारी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस किसमें होगा? आप खुद ही सोचो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देख देख, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ हमारा, हुआ ना? जी सर। बस अब इसको मैं क्लोन करूंगा, बनता जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना? तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces are perpendicular to electric field, therefore they are on the XY plane। खत्म। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया Z प्लेन पे। ठीक है जी सर। दूसरा डेरिवेशन आज नहीं करा, आज क्वेश्चंस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज Q is placed at point O, is placed at point O as shown। ये फिगर बाद में ड्रॉ करते हैं। as shown, the PD VA minus VB, यानी VA फाइनल है, VA minus VB, this PD is positive, right? Is Q positive और निगेटिव, ठीक है ना? इस Q पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है? हाँ, ड्राइंग को देखते हैं, ड्राइंग कैसा है। ड्राइंग हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा। और यहाँ पे एक दो पॉइंट ले लिया है हमने, A और B। तो ये है हमारा A और ये है हमारा पॉइंट B, ठीक है? These are two points, इसमें कोई चार्ज नहीं है। Q is placed at a point O as shown, यहाँ पे हमने Q को बिठाया है, यहाँ हमारा Q है और ये है O, ठीक है? और हमें बोला है VA माइनस VB इज इक्वल टू पॉजिटिव। आपको प्रूफ करना है कि वेदर VA Q इज पॉजिटिव और Q इज नेगेटिव, कौन सा है? Q पॉजिटिव है कि Q नेगेटिव है? तो कैसे करेंगे? Q पॉजिटिव है कि Q नेगेटिव है, ठीक है? अगर इसको प्रोसीड करना है तो हम पहले ही निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे आप ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू एनी चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय कितना?
के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर, ये इलेक्ट्रिक Yes, पोटेंशियल sir. है ना। इसका मतलब हमारा जो वी क्यू है ये कैसा वेरी करता है, 1/r से वेरी करता है, ठीक है ना। जी. अब आप बोलो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी हमें नहीं पता, हमें बोला है वी ए माइनस वी बी ये हो जाना चाहिए के क्यू, देखो तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाई, अब कुछ भी ले लो, ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस ले लो एल, A. एल ले लो और Okay. इसके बीच में ले लो ए ले लो, ठीक है ना, एल और ए ले लो। तो के क्यू कितना हो गया, आप पहले निकाल रहे हो वी ए माइनस बी बी निकाल रहे हो, वी ए कितना हो जाएगा के क्यू बाई A. ए, और इधर कितना हो जाएगा के A क्यू plus बाई A. ए प्लस एल, ठीक है, विच इज इक्वल टू के क्यू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। जरा देखो तो यहाँ पे बेटा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। नाउ यू आर गिवन VA माइनस VB इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है माने ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज हम ये इसको ग्रेटर देन जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/a माइनस 1/a प्लस एल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, Yes, sir. मैथमेटिकली कोई और सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हम क्या लिख सकते हैं, 1/a इज ग्रेटर देन 1/a प्लस एल, Yes, sir. है ना। अब हमें पूछा है Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या आना चाहिए हमारा, इसका मतलब इस अभी देखो रेसिप्रोकल को उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल को उल्टा कर रहे हैं, 1/a should be greater than this, that means a should be less than a plus l, Yes, sir. which is as per our diagram, Yes, sir. as per our diagram, therefore Q is positive। एक लाइन लिख सकते थे हमें, हमने Q को क्या कर लिया था, Q को एज्यूम पॉजिटिव करके हमने प्रॉब्लम किया था, देखो हमने Q को पॉजिटिव एज्यूम करके प्रॉब्लम किया था ना। Did you understand the logic? Yes, sir. Whatever you found is as per the diagram। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो एज्यूम Q is positive, Q is positive, our assumption was correct, was correct। आगे ए छोटा है हमारे डायग्राम में, ए स्मॉलर देन ए प्लस एल किसी भी हाल में, यानी कि हमारा assumption करेक्ट है। अगर आपका यहाँ पे सर अगर नेगेटिव होता तब भी नहीं, नेगेटिव करके देखो ना, नेगेटिव होने से माइनस होगा ना, एक जगह प्लस हो जाएगा, करो 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 ना, रफ हाँ ओके हाँ हाँ अंडरस्टूड। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना एक जगह पे जाकर, ठीक है। एक और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस और देखो। अच्छा ये क्वेश्चन देखे तो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a point charge q around a circular arc of radius r of which another charge q is located। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये करके देखें। एक और क्वेश्चन आ जाओ, इसको करके रख लेंगे, नींद आ रहा है तुम्हें, आ जाओ। क्यों कुछ डाउट हो गया क्या बेटा? नहीं नहीं सर। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, ये क्वेश्चंस तुम्हें सारे करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ नहीं तो जब तक आप प्रॉब्लम और क्वेश्चंस नहीं करेंगे फिर हमको एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चंस में हम मार खा जाएंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज Q around a circular arc of radius r, around a circular arc of radius r at the center
एट द सेंटर, यहाँ पे एक एक्चुअली फ्रैगमेंट है सेंटेंस का, उन्होंने किया नहीं है पर होना चाहिए, द सेंटर ऑफ विच another point charge Q is located. बेसिकली क्या बोला है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है बेटा, सर्कुलर आर्क का रेडियस है कितना, r, ये रेडियस है r। इसके चारों ओर एक पॉइंट चार्ज को घुमाना है, इसका एक सेंटर भी है और सेंटर में एक छोटा सा चार्ज है q, सेंटर में एक छोटा सा चार्ज है q, और यहां घुमाना है हमें एक बड़ा चार्ज जिसकी वैल्यू है q, इसकी वैल्यू है q, और इसको घुमाना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अराउंड द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। अगर आप पूरा सर्कल में घूमोगे तो वर्क डन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कंजर्वेटिव ना, मतलब क्लोज लूप में कंजर्वेटिव वर्क कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आप सोचो, एक बात मुझे बोलो, यहाँ पे क्या चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, जरा सोचो तो, क्या चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ जस्ट, हाँ थोड़ा सा संजीवनी सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लर्निंग बेकार है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। लेट्स कॉल इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं। ए से बी तक अगर हम चार्ज को, तो ए में कुछ एक पोटेंशियल होगा वी ए, बी में पोटेंशियल होगा वी बी। मान लो हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, है ना। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज। और ये चार्ज हमारा क्या है, ये चार्ज हमारा, मान लो कोई चार्ज नहीं है, ओके, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। अभी अभी यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज आया, उस चार्ज को भूल जाओ, जस्ट इसी को ले लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चार्ज। एक चीज बताओ आप, क्या आपको ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं लगता है, इक्विपोटेंशियल है ना। हाँ सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, ना क्यू चेंज हो रहा है ना छोटा क्यू चेंज हो रहा है। हाँ। आपको ये नहीं लगता है वी बी में जो पोटेंशियल होगा वी ए में होगा, इनफैक्ट ऑन एनी पॉइंट विच विल बी इक्वल टू ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यस सर। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे भी 0 होगा, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप इसमें अगर और एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू, और ये पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहो, आप अगर बोलना चाहो कि पोटेंशियल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on the circle will be what, the potential on any point of the circle will be k small q divided by r, ये ना, ये हो जाएगा at any point। जी सर। बस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका 0 है, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चंस हमें और लगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिस्कशन ऑन electric potential energy due to a system of 2 charges and due to a dipole. Once we have done that, then we'll do a little bit of theory between conductors, insulators and conductors and insulators and dielectrics, और उसके बाद कैपेसिटर में हमें सिर्फ एक डिराइवेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को डिराइव करना है बस। और फिर कुछ कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम करेंगे सीरीज और पैरेलल में, हो गया our chapter ends. I think 3 more classes we should be done with this chapter. And we'll take 4, क्या है हमारे को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी करना चाहिए, बट दिस कंक्लूड्स योर फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, तो यू आर नाउ सेट टू पिक अप एनी क्वेश्चन पेपर्स एंड यू शुड डू क्वेश्चंस। जितना आप क्वेश्चंस करोगे, थ्योरी में इशू नहीं है, थ्योरी पढ़ोगे आ जाएगा, बट न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। डन।